we have deduced the integrated rate equation for zero order reaction. But in this class, we will deduce the integrated rate equation for first order reaction. First order reaction, what it means? When we will write the rate equation, differential rate equation for the first order reaction, then this rate of this reaction is going to depend upon the concentration of the reactant, which has a power x equals to 1. Now, today we will discuss about the first order reaction. First of all, we will write the differential rate equation. What we have, integrated rate equation for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है एंड के आर टू द पावर 1। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसका पावर 1 होता है। पिछले केस में जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हमने यहाँ x की वैल्यू क्या रखी थी? 0 रखी थी। तो ये पूरा कंसंट्रेशन एनी टर्म रेज टू द पावर 0 पूरा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट का जो रेज पावर है वो क्या है? 1 है। सो फॉर दैट इन दिस क्लास वी विल डिड्यूस द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Suppose we have a reaction like reactant goes to product. Then we have this differential rate equation which is equals to rate is equals to minus dr by dt. dr, the rate of decrease of concentration of the reactant by time. We have written here d. D stands for a small change, very small change. It is equals to k r to the power 1. To the next, or we can write dr concentration of r by dt is equals to, transferring this minus from here to here, what we have, minus k r to the power 1, or we will not write it. When we will integrate this equation, integrating this equation when we will integrate this equation, what we have? Integration of what we have, first of all we will change here. Then what we have, dr by, transferring this r here, dr by r, it is equals to minus k dt. Now we will integrate this equation. Integrating this equation, what we have? Integration of dr by r, we have integration of r is equals to integration of k equals to k and integration of dt equals to t. So what we have, minus k constant, and integration of dt equals to t plus I, which is known as integration constant. तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास रिएक्शन है R2P, तो रेट हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस dr by dt which is equals to k r to the power 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या हमारे पास इक्वेशन है? इस माइनस फ्रॉम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफरिंग दिस माइनस फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट वी हैव, dr by dt इक्वल्स टू माइनस के आर। फिर इस r को यहां ट्रांसफर करेंगे, t को यहां ट्रांसफर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, dr by r माइनस के dt। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर जो हमको मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर। के कांस्टेंट है, हटा लेंगे, के है। इंटीग्रेशन ऑफ टी इक्वल्स टू टी साइन एज सच यहां रह जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा आई। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। लेट अस से एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इट मींस एट द इनिशियल कंडीशन, शुरुआती दौर में क्या होगा, वी विल राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ r is equals to minus k into 0 plus I. We will write it as what? At time equals to t0, what we have? Integration of r is equals to I. So what we have? By placing time t equals to 0, this r will be become r0, and we have placed the time equals to 0. Then what we have, integration of r0 equals to I. Placing the value of I here in this equation. Placing the value of I here, what we have? We have placing the value of I in above equation. What we have? Integration of r is equals to minus k into t plus I, where I is equals to integration of plus integration of r naught. So the next, what we will do? We will transfer this integration from here to here. Then what we have? We have integration of r minus integration of r naught is equals to minus k. What we have the equation? Integration of, or we can write integration of r minus integration of r naught is equals to minus k t. Then when we will rearrange it, we have integration of r by r naught. It is equals to minus k t. Or we should write integration of transferring this minus to here from here to here, or we can write it as transfer this minus from here to here. We have integration of r naught minus integration of r is equals to k t. Then what we have, rearranging in this equation, what we have, or we can write integration of r naught by r is equals to kt. And for that, what we have, or we can write k equals to 1 by t integration of r naught by r, where we have k is equals to rate constant, t is the time, r is the initial concentration at t equals to t0, and r is the concentration at time t. Then we have the equation like this. To the next, if we want to plot a graph, between this k 1 by t and integration of r by r naught, so what we will do? We will transfer this k and t to here. What we have, kt is equals to kt is equals to integration of r naught by r. We can change this integration into log. What we have, kt, or kt equals to 2.303 r naught by r.
transferring this 2.303 here, what we have, or we can write kt by 2.303 equals to log r naught by r, log r naught by r. We can plot the graph. What we have, this is equals to y, this is equals to x, and this is equals to m. Then what we have the graph, this graph is like this. This is log r naught by r. This is what we have, t on x-axis. Then what we saw, we see that the slope is positive, and what we have the positive slope, it is like this, where slope is equals to k by 2.303. In this process, what we do, we have the equation like this. Reactant goes to product. We will write the differential rate equation to the power 1 because it is first order reaction. हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे ये, t को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलेगा k dt, r को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, we have this one. When we will integrate it, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ r माइनस एज सच, k का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलेगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा. इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू हम रखेंगे एट टाइम t इक्वल्स टू t0, तो यहाँ t की जगह हम 0 रखेंगे तो व्हाट वी हैव गॉट, ये r जो है वो r naught हो जाएगा, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ r naught इक्वल्स टू i. फिर इस r naught की i की जो वैल्यू है इस प्रीवियस इक्वेशन में यहाँ हम रखेंगे, यहाँ रखा है, तो हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ r माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r naught माइनस kt. अब इस माइनस को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r naught. उसको रीअरेंज करके मैंने यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ r naught माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू kt. अब क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r naught बाई r. t को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी, k इक्वल्स टू 1 बाई t इंटीग्रेशन ऑफ r naught बाई r. तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा. अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम केवल ग्राफ के लिए हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया है. We will use this equation for our purpose. What we want to get. यहाँ क्या है, हमने फिर चेंजेस किए हैं किस लिए, अब what we have kt को ट्रांसफर किया तो kt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r naught बाई r. फिर इंटीग्रेशन को हमने लॉग में बदला है, तो इंटीग्रेशन को लॉग में बदलने के लिए हम we will multiply it by 2.303. इस 2.303 को हमने यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, kt by 2.303 log r naught बाई r. ये हमारा y है, ये k by 2.303 हमारे लिए m है, और ये क्या है, x है, और c हमारे लिए 0 है. c 0 है तो हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा. c 0 है और स्लोप क्या है, k अपॉन 2.303 जो पॉजिटिव स्लोप है, तो देखिए पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास, और लॉग ये y है तो देखिए ये हमारे पास log r naught बाई r, और ये टाइम t है. तो इन दिस वे वी विल गेट द इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसी रिलेशन से हम दो और रिलेशन को निकालेंगे इसके इंटरमीडिएट स्टेप से. नाउ वी विल गेट अनदर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय द यूज ऑफ सेम इक्वेशन व्हिच इज ऑलरेडी यूज्ड इन द प्रीवियस रिलेशंस. लेट अस सी. हमने क्या रिड्यूस किया है, हमने रिड्यूस किया है इंटीग्रेशन ऑफ r1 इक्वल्स टू माइनस kt1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r naught. ये हमने इक्वेशन पहले रिलेशन में ही निकाल लिया है. अब इसी से हम एक नया इक्वेशन निकालेंगे, किसके लिए, r1 एंड r2 कंसंट्रेशन के लिए. अगर हमको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पता है, अगर हमको इनिशियल और फाइनल टाइम पता है, तो हम रेट कांस्टेंट को पता कर सकते हैं, या इसमें से एक भी जो अननोन वैल्यूज होगी उसको हम पा लेंगे. तो विल राइट एट टाइम t1 टाइम पे क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ
R is equal to minus K T1, time will be T1 plus integration of R naught as such. That will not change. At time T2, what we have, we will modify this relation. ये R1 है, we will change this relation for T2. तो हमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ R2 इक्वल्स टू माइनस K T2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ R नॉट. तो हमने T1 पे रिलेशन लिख दिया और T2 पे रिलेशन लिख दिया. Suppose this one is we have the first equation and this one we have the second equation. And what we will do subtracting equation 2 from 1. What we have? 2 from 1. So this we have. We'll subtract this equation from this. What we have? Integration of R1 minus integration of R2 is equals to minus K T1 plus integration of R0 minus plus K T2, and this will become minus integration of R0. Then what we have? We have integration. This one, integration of R1 by integration of R2. We will write rearranging this equation, or integration of R1 by R2 what we have? We have this. We will write, this will cancel with this, plus and minus, same value we have. We will write KT2 minus KT1, or we can write integration of R1 by integration of R2, taking K as common. What we have? T2 minus T1. Then we have the relation, or we can write K is equals to 1 by T2 minus T1. Integration of R1 by R2. Or we can write, or K equals to 2.303, changing integration to log. What we have? T2 minus T1 log R1 initial concentration by R2. This is the new relation which we have. हमने क्या किया? हमने इसी इक्वेशन के लिए दो टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में लिख लिया. तो एट टाइम T1 हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? R1 के टाइम क्या हो जाएगा? T1 और इंटीग्रेशन ऑफ R0. ये वे वैसे ही रहेगा. T2 पे हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ R2 इक्वल्स टू माइनस के T2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ R0. सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया है? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस किया है. तो माइनस किया है तो हमने क्या किया है? इसमें से इसको माइनस करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ R1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R2, फिर माइनस के T1 इंटीग्रेशन ऑफ R0. ये माइनस है तो माइनस करने पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के T2, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R0. रीअरेंज किए हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ R1 बाई R2 इक्वल्स टू के T2 माइनस के T1. के को कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? के T2 माइनस T1, और वी कैन राइट के इक्वल्स टू 1 by T2 minus T1 इंटीग्रेशन ऑफ R1 by R2. फिर हमने इंटीग्रेशन को लॉग में बदला है. 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन एक नया रिलेशन मिला है. K इक्वल्स टू 2.303 T2 minus T1 log R1 by R2. ये किसके लिए है? अगर दो कंसंट्रेशन पे, दो टाइम पे हमको कंसंट्रेशन पता है, R0 नहीं पता है, तो भी हम K को डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर दैट वी हैव दिस रिलेशन. टू द नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे.
we have a new relation. What we have the equation? What we have the equation? This one. Integration of r is equals to minus kt plus r नॉट. ये रिलेशन हमारे पास पहले से है, पहले इक्वेशन में हमने इसको डिड्यूस किया है. इसको हम लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ r माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी. अब माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r is equals to kt. To the next, what we will do? इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट, या इसी रिलेशन पे हम निकाल सकते हैं. इस रिलेशन पे हमारे पास क्या है, विल राइट इट एज, इसको ही लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r बाई r नॉट. इट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. क्या करेंगे आप इस इक्वेशन में, वी विल टेक एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग on both sides. So what we have r by r naught is equals to e to the power minus k t. Rearranging it, or we can write r equals to r naught e to the power minus k t. तो हमारे पास एक तीसरा रिलेशन है, और ये रिलेशन इट इज ऑल्सो वर्क फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन. वी विल ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ फॉर रिलेशन. व्हाट वी हैव, इंटीग्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट. इसके लिए भी हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. ये हमारे पास क्या है, ये y है, और ये हमारे पास c है, ये माइनस की हमारे पास m है, और t जो है वो x है. तो वी विल प्लॉट द ग्राफ. ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ r, ये हमारे पास क्या है, टाइम है. तो हमारे पास स्लोप क्या है, नेगेटिव है. वी राइट लाइक दिस, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के, एंड दिस इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट. तो ये हमारे पास स्लोप. व्हाट आर द एग्जाम्पल, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऑल द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल